पेज 140 140 Surrender to the mother. There is not much spiritual meaning in keeping open to the mother if you withhold your surrender. यदि आप अपने सरेंडर को बचा के रखते हो, उसको विथहोल्ड करते हो, तो ओपन टू द मदर, इन कीपिंग ओपन टू द मदर का कोई स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं है. इफ ये है सेल्फ गिविंग और सरेंडर is demanded of those who practice this yoga, because without such a progressive surrender of the being, it is quite impossible to get anywhere near the goal. Self-giving or surrender is demanded of those who practice this yoga. इस योग को का जो अभ्यास करते हैं, उन्हें सेल्फ गिविंग या सरेंडर उनसे मांग की जाती है, क्योंकि without such a progressive surrender of the being, it is quite impossible to get anywhere near the goal. To keep open means to call in her force to work in you. And if you do not surrender to it, it amounts to not allowing the force to work in you at all, or else only on condition that it will work in the way you want and not in its own way, which is the way of the divine truth. भागवत सत्य क्या चाहता है उस तरीके से नहीं, व्यक्ति अपने ही तरीके से करता रहता है. A suggestion of this kind is usually made by some adverse power or by some egoistic element of mind or vital which wants the grace or the force, but only in order to use it for its own purpose and is not willing to live for the divine purpose. It is willing to take from the divine all it can get, but not to give itself to the divine. भगवान को देना नहीं चाहता. The soul, the true being, on the contrary, turns towards the divine and is not only willing but eager and happy to surrender. In this yoga, one is supposed to go beyond every mental idealistic culture. Ideas and ideals belong to the mind and are half-truths only. The mind too is more often than not satisfied with merely having an ideal, with the pleasure of idealizing, while life remains always the same, untransformed or changed only a little and mostly in appearance. The spiritual seeker does not turn aside from the pursuit of realization to mere idealizing. ये पैराग्राफ क्या? In this yoga, one is supposed to go beyond every mental idealistic culture. Ideas and ideals belong to the mind and are half-truths only. The mind too is more often than not satisfied with merely having an ideal, with the pleasure of idealizing, while life remains always the same, untransformed or changed only a little and mostly in appearance. The spiritual seeker does not turn aside from the pursuit of realization to mere idealizing. Not to idealize, but to realize the divine truth is always his aim, either beyond or in life also. And in the latter case, it is necessary to transform mind and life, which cannot be done without surrender to the action of the divine force, the mother. To seek after the impersonal is the way of those who want to withdraw from life, but usually they try by their own effort and not by an opening of themselves to a superior power or by the way of surrender.
For the impersonal is not something that guides or helps, but something to be attained, and it leaves each man to attain it according to the way and capacity of his nature. On the other hand, by an opening and surrender to the mother, one can realize the impersonal and every other aspect of truth also. इम्पर्सनल की ओर खुल के उसका कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन वाली बात नहीं होती। माँ के प्रति जब आप खुलते हो तो इसके अंदर one can realize the impersonal and every other aspect of truth also. The surrender must necessarily be progressive. No one can make the complete surrender from the beginning. So it is quite natural that when one looks into oneself, one should find its absence. That is no reason why the principle of surrender should not be accepted and carried out steadily from stage to stage, from field to field, applying it successively to all the parts of the nature. इसमें कोई प्रश्न है? ये जो पूरी देर गया कि उसमें चीजें ऐसी हैं जो, हाँ देविका जी, इसमें बहुत जल्दी पढ़ लिए तो वो धीरे धीरे एक एक लाइन करके पढ़े तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। धीरे जीवन को खोलने की बात है। इसमें जो बातें कही जा रही हैं वो रिलेट नहीं कर रही अपने से। तो आपके कोई सेंटेंस नहीं समझ में आया हो, क्योंकि एक्चुअल यदि इसको खोलेंगे तो हमारे बीइंग के ऊपर हीट आएगी इसकी। नहीं, वो तो जब पढ़ेंगे समझेंगे तभी पता चलेगा कि रिलेट हाँ, तो कर रहा इसको है। शुरू से आप बता दीजिए, शुरू से खोल दीजिए। There is not much spiritual meaning in keeping open to the mother if you withhold your surrender. हम्म। तो ये है कि अगर हम अपना समर्पण जो है माँ के प्रति नहीं करते, हम ओपन नहीं होते माँ के प्रति। विथहोल्ड करते हो, विथहोल्ड withhold, करते हो, करते तो हो, हाँ जी। कुछ भाग बचाए रखते हो, डिपेंड करता है कितना बचाए रखते हो। तो ये जो ओपन टुवर्ड्स दी मदर की जो बात है उसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है ये। स्पिरिचुअल मीनिंग कुछ नहीं है इस बात के अंदर, ओपन टुवर्ड्स दी मदर। ये इतनी बेतुकी बात है, इसलिए ये पहली लाइन पढ़ते ही मैंने कहा भी इसको पढ़ जाते हैं अपन। ये वाली चीज कोई नहीं करना चाहता। ये किसी और की बात क्या करें, हमारे बीइंग में हम खुद देखते हैं, इसके अपने मंसूबे हैं। सरेंडर किसकी, हम तो तुनक मिजाजी हैं, अभी किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये कैसे नहीं किया। इसलिए हम इसका अर्थ नहीं जानते। विथहोल्ड योर सरेंडर, कोई भी आदमी अपना विथहोल्ड सोच के करता है क्या? भाई हम सारे बैठे हैं, साइकोलॉजिकली हम बिल्कुल अवेक हैं। क्या अभी हम सोच के विथहोल्ड कर रहे हैं या समर्पण कर रहे हैं या ओपन टुवर्ड्स दी मदर, अभी कहाँ हैं अगर जायजा ले तो? और ये कह रहे हैं कर सकते भी नहीं आप, शुरू में लास्ट में यही तो कह रहे हैं, आप कर सकते भी नहीं। करने की इच्छा पूर्ण है क्या, मेन बात वो है। इसमें बहुत तरीके के प्रश्न, यदि आप इसको विचार करोगे, सेल्फ विल चलती रहती है देविका जी। आप चाहे यहां आ जाओ, मतलब अनन्य रूप से माँ के प्रति जीवन कहने को अपना लो, लाइफ अपना अड़ंगा खुद बिठा लेगी। ये नहीं आप इनसिंसियर हो, ये तो लाइफ का तत्व इस तरीके का है। तो फिर आदमी कहता है ठीक है हम अपनी जगह से हिलते नहीं है, वो तो कोई फिर निर्णय ही नहीं करना हुआ, यात्रा में ही नहीं जाना हुआ वो तो। ये सोच के कोई करता विथहोल्ड योर सरेंडर, तो स्पिरिचुअल मीनिंग है नहीं कीपिंग ओपन टू दी मदर। इस बात में जरा भी आध्यात्मिक इसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है। अब बताओ इसका क्या करें, अब तो क्या जो करें इसका? जिस भाग के बारे में सचेत है उसके बारे में तो हम कर ही लेते हैं समर्पण। तो माँ आप ये हो, प्रॉब्लम को देखो, होता ये क्या है प्रॉब्लम समर्पण? हो रही है।
किसको समर्पण कहते हैं समर्पण? समर्पण है कि जो माँ को पुकारना, माँ के प्रति कि माँ आप इस प्रॉब्लम को हमें गाइड करो, या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ये हो नहीं रही है, या हमें राइट डायरेक्शन। हाँ, बेसिकली इस मनोभाव में उभरता। आप अलग खड़े हो और आप माँ की चीजों को बुला रहे हो, कि आप सर्टेन भाग देखते हो, उन भागों के अंदर हो सकता है उनकी लाइट पुकार रहे हो या चीजें पुकार रहे हो। जब तो यह एस्पिरेशन, सरेंडर का मतलब पूरी तरह से, यदि हम डिवाइन विल को एक्सेप्ट करें, अपना कोई भी विल ना रखें कि ऐसे हो वैसे हो, तभी तो संभव है कि आपके भगवान भीतरी जो भाग के लिए ये चाहते हैं। संभव है। लेकिन आपके हम्म, भीतरी भाग के लिए ये संभव है, बाहरी भागों को इसका सेंस नहीं है। हाँ, बाहरी भाग को इसको इसका पता नहीं। बाहरी भाग तो अपना विल उसमें कि भगवान करे भी तो जैसा हम हाँ, चाहते ये हैं ठीक वैसा है, ये करे। नाम है, ये सारे के सारे, ये सारे नाम हैं। इसकी साइकोलॉजी में जब तक हम प्रवेश नहीं करते, ये नाम तो है तो ही, बस ठीक है, साइकोलॉजी इसमें कोई। प्रवेश करने का मतलब क्या हुआ? मीराबाई का भजन आप साइकोलॉजी गा में सकते हो? आप मीराबाई का भजन गा सकते हो? मीराबाई जहां से लिख रही है वो तो साइकोलॉजी हो गई ना। आपके गाने से आपका बनने तक की यात्रा तो बड़ी लंबी हो गई। हम्म, माँ मैं आपका हूं ये बोलना और ये हो जाना, फिर उसको ये फुर्सत नहीं रहती ये कहने की मैं आपका हूं। भरत जी ने ये कहा, मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा कोई हाथ नहीं है राम जी को भेजने का। उन्होंने कहा, "अरे तेरे को कहने की क्या जरूरत है, तेरा रोम रोम बोल रहा है ये बात।" हम्म। तो इसका अर्थ कर देते हैं देविका जी, चलिए इसका सेल्फ गिविंग। Self-giving or surrender is demanded of those who practice this yoga, because जो इस योग without का अभ्यास करते हैं उनको, उनके डिमांड है ये। पर कॉन्शियसली कोई कि हमने इस योग के लिए अपने आप को दिया है, पहले तो ये तो होना चाहिए कि इस योग के लिए दिया है हमने अपने आप को। हाँ, उनके लिए, बिकॉज विदाउट सच ए प्रोग्रेसिव सरेंडर ऑफ द बीइंग इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू गेट एनीवेयर नियर द गोल। तो जिन्होंने ये कह के दिया है कि भाई हम और कहीं भी अपनी एनर्जी नहीं लगाएंगे, इसी को देंगे, अब उनके ऊपर सारी चीजें, वो डिमांड उनसे की जा रही है। हाँ, टू कीप ओपन। to keep open means to call in her force to work in you, हम्म। and if you do not surrender to it, it amounts to not allowing the force to work in you at all, हम्म। but only on condition that it will work in the way you want and not हम्म। one way, which is the way of the divine truth. ऐसे नहीं करेगी, हाँ आपको जी। पता चलेगा नहीं इसका, इस बात का। इसका कैसे पता चले? कि ये तो आपको यही लगेगा डिवाइन ट्रूथ के तरीके से ही मैं चल रहा हूं, अलाउ आप कर नहीं रहे उस फोर्स को। तो इसका इसमें पकड़ने का कोई भौतिक तरीका है क्या? देविका जी, ये जो कह रहे हैं श्री अरविंद, कोई फिजिकल तरीका भी है कि इसको पकड़ने का? हाँ जी, तो इसमें बार बार ये जरूर कहना कि माँ मैं आपका पर्सपेक्टिव देखूं, चाहे बीच में हम कर अपनी रहे हैं या कुछ है, बट इस चीज के हाँ, लिए सचेत होना, इस यही बात के कहता है व्यक्ति। लिए वहां आश्रम के दो साधक, दो गुट आपस के अंदर, और दोनों जाके समाधि के ऊपर ये कहते हैं हम तो आपके पक्ष में खड़े हैं, दोनों कोर्ट केस कर रहे हैं। स्थितियां बहुत ज्यादा पेचीदा हैं, ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हो जो वहां गए हैं?
जिसके लिए ये लिखे जा रहे हैं, इतना बेसिक कॉमन सेंस उसके नहीं है। वो तो सीधे सीधे माँ और श्री अरविंद के संपर्क में है, श्री अरविंद लिख रहे हैं। इसकी साइकोलॉजी में प्रवेश करना और इसमें क्या चीजें हैं। ये तो इगोइस्टिक बात होगी कि हम आपके पक्ष में खड़े हैं, कितना खड़े हैं। यहाँ पर तो समर्पण की जरूरत है कि हम आपके पक्ष में खड़े हों, हमें आप उस तरफ से लेकर हाँ, चलो। ये यही करके किया इन्होंने, जो पीछे जो केसेस और इतना जो बवाल मचा था वहां, उसमें अच्छे भले सारे के सारे, एक पक्ष जाके वो भी प्रार्थना करके आता है, दूसरा पक्ष जाके वो भी प्रार्थना करके आता है। यही ओरोविल में हुआ, यही आश्रम में हुआ। ये इस चीज में ईगो रस लेना शुरू कर देता है कि मेरी अनन्यता है माँ के प्रति। बचो कैसे इससे। नहीं तो ये मूवमेंट ही सबसे गलत है जो कोर्ट केस की है। अब अगर वो जो उनने भी है, भाई वो जो भाई भी है, एक वो दूसरे को नाम तो भाई, यहाँ ओपनली अपन क्या लें, वो तो है। वो तो है ही। अब आपके और मेरे सही गलत किसी चीज को करार करने नहीं करने से तो जगत में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। हमारे गले थोड़ी उतर रही है सारी चीज। इन्होंने ट्रीटी करी, उससे पहले वहां मिसाइल मारनी शुरू कर दी हॉर्मूज के अंदर। अब ये सही है या गलत है, जो है सो है। यही बात तो इसमें, यही तो मैं कह रहा हूं, हाथ रखने को जगह नहीं है इसमें। यही बात में कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी है वो आइडियलाइज करना नहीं है, सही गलत के मायनों पे नहीं उतरती है। यही तो प्रॉब्लम है। ये बाद में यही पैराग्राफ में यही वाली बात आने वाली है। ये सही गलत के मायनों में नहीं। यदि आप गहराई में हो तो कोई चीज कहती है ना, ये नहीं, ये वो परसेप्शन, यदि आप भौतिक चेतना में हो वो परसेप्शन नहीं आएगा। कोई नाम तो है नहीं उसका। इंट्यूशन का कोई नाम थोड़ी होता है, इंस्पिरेशन का नाम थोड़ी होता है, रेवलेशन का कोई यो नाम थोड़ी है, उचित अनुचित। ये इस दायरे से परे है। इंस्पिरेशन आ गई कि ये अनुचित है, अरे अनुचित उचित नहीं, ये दायरा चेंज हो गया। तो यहां तो इसको अनुभव करने की बात है, बाकी इस पे कोई हाथ तो रख नहीं सकते। ये तो गुरु आपको बता रहे हैं, श्री अरविंद बता रहे हैं उसको। A suggestion of this kind is usually made by some adverse power. विपरीत शक्तियां हैं वो आपको इस तरीके का सजेशन देती है, और बाई सम egoistic element of mind or vital which wants the grace or the force but only in order to use it for its own purpose. पर खाली अपने पर्पस के लिए। तो अभी जो हम प्रार्थना कह रहे थे वो तो ये वाली है। दूसरी वाली प्रार्थना क्या है उसका हमको अभी पता नहीं है। इसको कैसे अलग करो कि ये आपके कोई ईगोइस्टिक एलिमेंट है, वो ग्रेस को माइंड और वाइटल के लिए चाहता है, और द फोर्स, बट ओनली इन ऑर्डर टू यूज इट फॉर इट्स ओन पर्पस एंड इज नॉट विलिंग टू लिव फॉर द डिवाइन पर्पस। भागवत उद्देश्य के लिए जीना चाहता है। इट इज विलिंग टू टेक फ्रॉम द डिवाइन ऑल इट कैन गेट, बट नॉट टू गिव इटसेल्फ टू द डिवाइन। और ये गिव करने का फॉर्मुलेट कैसे करेंगे? मेरी सारी शक्ति आपकी है, मैं जो हूं वो सब आपका हूं, वो तो बाय डिफॉल्ट ही उनका हूं। मतलब आप कहो मेरे कर्म आपके हैं, ये सब आपके हैं। अगर ये कहना है समर्पण, सारे लोग, ये एक बेसिक प्रार्थना है, ये सब करते हैं। ये तो है, बट साथ साथ जहां जहां प्रॉब्लम आती है उनको बताए भी कि यहाँ यहाँ देखो प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरा बीइंग अपने ढंग से चल रहा है, ये अपनी। और बार बार हर चीज के अंदर स्टेप बैक करके ये प्रार्थना करनी कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, मैं इतनी मेरे अंदर ओपननेस हो कि मैं आपका पर्सपेक्टिव समझ सकूं और उसके हम्म। अनुसार बन सकूं, या आपका आइडियल चाइल्ड बन सकूं। आप क्या मुझे बनाना चाहते हैं, मैं वो बनूं। हाँ, इसमें सारा कंसर्न मैं पे है। देखो आपके सारे सेंटेंस यदि आप देखो तो, कि हम मैं के साथ, जब मैं है यही तो मुझे दिया है आगे बढ़ने के लिए, मैं सबके साथ कैसे हो सकती हूँ। सबके साथ तो प्रेम है, सब है, बट जो मेरे पास जो लाठी है चलने की, वो तो भी मैं की है। जिस समय वो हाँ चाहेंगे वो कर देंगे, बट फिलहाल तो मैं ही चल रही हूँ ना। ठीक है, आगे चलिए।
The soul, the true being, on the contrary, turns towards the divine and is not only willing but eager and happy to surrender. हम्म इसमें द सोल द ट्रू बीइंग, जो हमारे अंदर का जो ट्रू बीइंग है, वो ऑन द कॉन्ट्ररी वो ईश्वर के प्रति टर्न करता है और एंड इज नॉट ओनली विल बट ईगर, वो ये नहीं कि सिर्फ चाह रहा है, वो बहुत खुश है, ईगर है, उत्सुक है सरेंडर करने के लिए। हाँ, इसमें ही है उसके। अब ये ललक तो आपका सैंपल उठा लो बीइंग का, ये है। इन दिस योग, इस योग में one is supposed to go beyond every mental idealistic culture. Ideas and ideals belong to the mind and are half truths only. Ideas और ideals जो हैं ये हाफ ट्रूथ्स हैं। ये सारे भागों की समस्या तब पकड़ में आएगी जब जो बाहर का साधन संसाधन है वो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। वो मैनेज माँ जब करेंगी, जब भौतिक आवश्यकताएं आपको चाहिए कुछ और, वहां डाइनिंग हॉल में माँ ने जो तय कर दिया, अभी आपको विरोध करने वाली कोई चीजें नहीं है। तो वो वाली चीज क्या होती है, और उसमें कोई दूसरी संभावना नहीं हो कि आप चाह रहे हो कहीं घूमने जाना और सामने कह रहे नहीं ये नहीं चलेगी। जब आपकी विल के ऊपर दूसरी चीज स्थापित की जाती है, अभी तो मेरे बलबूते के ऊपर है, मैं उठ गया, मैंने स्टडी कर ली, मैंने माँ से ये कह दिया, ये सारी बातें बढ़िया हैं, बहुत अच्छी हैं, पर इससे प्रकृति को कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति को वहां दिक्कत है, प्रणाम नहीं करने आना चाह रहा वो, उस समय उसको अंतर्दर्शन हो रहे हैं प्रणाम के समय। तो इसीलिए मैंने कहा भी इसमें गलत इंप्रेशन आता है इस सारे का, और वो मैं देख रहा हूं इसको। और तो क्या कर सकते हैं, इसमें बड़ी समस्याएं हैं, ये है नहीं इस तरीके की। जो कह सकते हैं वो तो कह ही दिया श्री अरविंद ने। The mind too is more often than not satisfied with merely having an ideal. माइंड जो है ये हर किसी का नहीं, ये क्या कह रहे हैं, उसको एक आइडियल होना पर्याप्त है, merely having it with the pleasure of idealizing while life remains always the same, untransformed or changed only a little and mostly in appearance. इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? इसका जो मुझे लगता है वो ये है कि भाई हम अपने मन में आइडियल्स बिठा के रख लेते हैं, जैसे सच बोलना है, हर एक से प्रेम करना है, तो ऐसा व्यवहार करना है, तो ये सब आइडियल्स के अंदर ही हम खुश रह जाते हैं। बट हमारी जो लाइफ है वो फिर चलती तो अपने ही ढंग से है, सरेंडर नहीं करते, ट्रांसफॉर्म नहीं करते, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको माइन्यूटली नहीं देखते, एज इट इज चली जा रही है, बट हम अपने आइडियल से ही खुश हो जाते हैं। और हम अपने आइडियाज से भी, कि साधना इस तरह की है, या हमने सुबह इतनी पूजा कर ली, दोपहर इतनी कर ली, तो वो तो योग में हमने नहीं सब है, इन वो लिया। तो योग की बात नहीं है। जी, तो ये इसमें योग क्या की। है, आप एक आइडियलिस्टिक तरीके से योग में आके भी, मैं तो सही सही चल रहा हूँ, एक आइडियल अपना लेना कि मैंने माँ श्री अरविंद का योग अपना लिया और उसके गर्भ के अंदर वो सारी चीजें करना, जबकि आप पढ़ चुके हो माँ का व्यवहार करना, आप माँ के टीचर हो, फिर भी ऐसी बातें करते हो, ऐसी चीजें करते हो, आपने पढ़ रखा है और आइडियलाइज आप ये कर रहे हो मैं माँ का टीचर हूँ। ऐसे लोग जब जाके व्याख्यान करते हैं, अपने आप को यूं प्रस्तुत करते हैं, ऐसी चीजों के उत्तर देते हैं, हम भी तो कर रहे हैं ये। वो भाग को इस समय भूल गए जो आपको समर्पण करने नहीं दे रहा, और वो आइडियलाइज करके उसी को देख रहे हैं कि वही सारी चीज है। तो माइंड को आइडियल के अंदर, मियरली हैविंग एन आइडियल विद द प्लेजर ऑफ आइडियलाइजिंग, नहीं नहीं हम तो बहुत बढ़िया हैं। एक जना बताओ जिसको ये सेंस भी हो
कि वो इतने भयंकर अज्ञान में है, उसकी अनियमितता उसको नजर आती हो, अपनी प्रकृति की वो सारी चीजें जो अपनी चीज चाहती हो, ये नजर कहाँ आती है, और उसको सबड्यू करने के लिए फोर्स करता हो, वो आइडियलाइज करके उससे खुश हो जाता है मैं कुछ हूं, जबकि बेसिक सी जो चीजें हैं ये और किसी से तो आशा कर ही नहीं जा रही। माँ के प्रति जो एस्पिरेशन रखते हैं उनके प्रति उनसे ये रखी जा रही है। आपके छोटे छोटे एक्ट, आपको ये कह दिया जाए नहीं ये नहीं कर सकोगे, ये चीज नहीं होगी, कितना व्यक्ति सहन कर लेगा इस बात को। आपकी चाह ही नहीं हो और माँ की चाह ही हो, और वो अभी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माँ फोटो में है। वही तो पत्र हम पढ़ रहे हैं, माँ और श्री दोनों मौजूद हैं, उनकी चाह ही कितनी कर रहा है वो व्यक्ति। तो आइडियलाइज करता है। पंकज जी साधक हैं, पंकज जी इतना काम करते हैं, इस आइडियल के लिए या इसके लिए वाइटल इतनी पागल है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। एक महात्मा जी का चोगा पहन लेगा, पंकज जी दूसरों की क्लास ले रहे हैं, पंकज जी खुद का संभाल ही नहीं पा रहे, मेरे से समय से उठा ही नहीं जा रहा, मैं तो क्लास में समय से नहीं आ रहा, फिर चोगा पहन लिया मैंने एक में, साहब मैं कुछ हूं। यार बेसिक माँ ऐसे कोई भी आवरण को बिल्कुल काट के फेंक देती है। आइडियलाइज कर लिया इन्होंने सूप सेरेमनी, श्री अरविंद ने कहा एकदम तामसिकता थी, उसको हटाना पड़ा, जबकि और दूसरों के आप पढ़ के देखो वो उसको आइडियलाइज कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा इसको समझाना बहुत बुरा है, इसके उदाहरण से मैं बच रहा हूं कि दूसरों को क्या दिखाएंगे, ये तो मैं देखता हूं उदाहरण दूसरों में नहीं। दूसरे तो अभी जब पदार्पण ही नहीं किया योग के अंदर, जो यहां आ गया ये कह के योग के लिए कहने को, और उसकी प्रकृति जो झांसे दे रही है, तब देखने को मिलते हैं झांसे। अब उसके पास पैसे नहीं है, अब उसके पास जो भी उसकी जरूरतें आश्रम पूरी करता है, इसी चीज के लिए कितने लोग चले गए वहां से, ये आश्रम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ तो दबाव है, हम अपना खुद का खोल लेंगे एक। क्यों खोल लेंगे खुद का? तुम यहाँ शॉपिंग करने के लिए आए थे क्या? ये समस्या पहले अराइज नहीं करेगी। आप कहते हो मेरा घर है, अब इसके अंदर लीकेज कर रही है या जो भी है मेरा अपना है, आदमी उसको सहन करता है क्योंकि उसको सेंस ऑफ मेरा है, जैसा है मेरा है वह ठीक है। अपना बच्चा किसको बुरा लगता है? मेरा है। पर जब आपके निर्णय कोई दूसरी इंटेलिजेंस, जिसको आपने कहा था कि ये हायर इंटेलिजेंस है, उसको सबड्यू कर दोगे, एक दिन अच्छी लगेगी, दो दिन अच्छी लगेगी, बाद के अंदर वही व्यक्ति दिखता अच्छा नहीं लगेगा। वो माँ को और श्री अरविंद को प्रणाम करने नहीं आ रहे। इसलिए जो आइडियल तरीके से आप सोचते हो, माइंड आइडियलिज्म बनाने की कोशिश करता है, रोमेंटिसाइज करने की कोशिश करता है। आपने योगी कृष्ण प्रेम पढ़ी, उन्होंने कहा ऐसा रोमेंटिसाइज करके यहाँ आए लोग, और थोड़े ही दिन के अंदर पांव खड़े करके भाग गए। एमपी की अपने पास एक लड़की थी, वो आई हरिद्वार जाके, कपड़े वगैरह उसने पैक किए करके, कहा मैंने तो वहां गुरु अपना लिया हरिद्वार के अंदर, कि मेरे पास वो कंप्यूटर वगैरह के लिए आती थी, बड़ी थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है ये तो, कि यहाँ तक कोई व्यक्ति आया। पता चला 6-7 दिन बाद में वहां से गायब हो गई। तो जब तक वो गुरु, वो यहाँ से गई है, यहाँ लंबे टाइम थी, वहां जाके उसको गुरु का पता चल गया, और 4 ही दिन नहीं निभा पाई तो गुरु का स्वभाव पता चल गया। ये आपको बड़ी अजीब लग रही होंगी बातें, क्योंकि इसमें यही बात है। आइडियलाइज तरीके से माइंड क्या है, अच्छा मुलम्मा चढ़ाता है उसके ऊपर, सोने का पानी चढ़ाता है, आश्रम लाइफ, माता जी का सानिध्य, श्री अरविंद का सानिध्य।
पर जब आपकी भौतिक जरूरतें, अरे ये तो माँ पूरी करेंगी, आध्यात्मिक जरूरतें, मेरे को तो शांति मिलनी ही चाहिए, फिर आपके जो आइडियलिस्टिक है वो चश्मा उतर जाता है। इश्यूज प्रैक्टिकल, यार क्या है ये, गुरु तो अविश्वास करते हैं या पता नहीं क्या क्या। तो ये जो आइडियलिस्टिक चश्मा है ये अच्छे बलों का उतर जाता है। गुरु कह के गुरु अपना लेना और उनको सरेंडर कर देना। श्री अरविंद कह रहे मेरा समर्पण मेरे को लगा पूर्ण है। माँ को देख के पहली बार जाना समर्पण क्या होता है। आप जस्ट इसको लिख के देखो, समर्पण। और यदि माइंड इतने सालों में मैं अपेक्षा रखता हूं आपका विकसित हुआ, तो ये देखो यही है बस, इसी को बोलते हैं। फिर आपका माइंड उत्तर देगा नहीं, इसकी अवस्था में जब आगे जाते हैं तब ये होता है। और पर चलने से ही तो आगे जाएंगे। चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसलिए इसकी साइकोलॉजी पीछे जो है ये कुछ और डिमांड कर रही है। अनिल जी, ये जो चर्चा कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं क्या कुछ? सर इसमें जो है जो अपन बात करते थे अब तक सारा दिन, अभी जो सरेंडर जो है पूरी इसमें जो है इसकी प्रोसेस आ गई, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और सारी चीजें आगे जो अपन अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं, सरेंडर, व्हाट इज सरेंडर, इससे बियॉन्ड कुछ है, पूरा कच्चा चिट्ठा है। मतलब क्या, इसके बियॉन्ड क्या है आप तो, मतलब भाई कुछ कहने जयपुर की से जरूरत ही अपने नहीं, पास आते थे, कुछ जरूरत बहुत नहीं है सर, मूव सारा थे। पूरा आ गया इसमें, मैंने तो देखा है ना, कुछ नहीं, मतलब इसमें अब इससे बियॉन्ड कुछ हो ही नहीं सकता। अब सरेंडर कहना मतलब लेटरिंग सी हो गई ना, सरेंडर बहुत भाई मैं ये मुश्किल कह चीज रहा है, हूं इसी से व्यक्ति बचाता रहता है अपने आप को। बहुत मुश्किल चीज है, बहुत मुश्किल। अच्छा, इसके अंदर अपने पास वो रह रहे हैं, वो जब जयपुर से आते थे बड़ी अच्छी मित्रता थी, पढ़ के अच्छा भी लगता था, सारी क्लासेस सुनते थे। फिर बाद में ये कि भी मैं अब स्विच करने वाला हूं, यहाँ आने वाला हूं। यहाँ चाहे जयपुर से यहाँ तक का रास्ता 2.5 घंटे का है। मैंने कहा जिस दिन ये निर्णय लेगा, बैग पैक करेगा, उस दिन पता चल जाएगा कि धरती कैसी होती है। क्या किसी और को नहीं पता चलेगा, तेरे को ही लगेगा कि विश्व युद्ध हो रहा है। सारी खबरें भी आ जाएगी कि तेरा बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया, तेरी माँ हॉस्पिटलाइज हो गई। हर 2 मिनट बाद में यह आएगा कि कार में मोड़ लूं। इतना भारी वो रास्ता, और व्यक्ति एकदम यूं आके सन्न जैसे विदाउट सेंसेस बैठता है कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब ब्लैकआउट हो गया। बिल्कुल। अब उसका जब अर्थ, अब जब पैसे नहीं हैं या हैं तो वो आश्रम के, तू कैसे खर्च कर सकता है इस तरीके से? पहले आप जिन व्यक्तियों के पास जाके बैठते थे, अरे यार मतलब इसमें क्या लगता है, एक नई ये चीज आई है, ज्वेलर के पास गए तो ये ज्वेलरी आपको पसंद आई, क्या तो आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, यार अब तू आश्रम में है। आपको हर चीज वो रिमाइंड करेगी, जहां कहाँ कचाई होगी। अभी क्योंकि आपके सामने स्थिति नहीं है। जब आपका अपना बच्चा गाड़ी के अंदर बिठा के आपको कहीं छोड़ आएगा, आज सोच रहे हो आज वो स्थिति है नहीं, जिस दिन होगी उस दिन आज जैसा सोच रहे हो वैसा थोड़ी सोचोगे। क्या एक्चुअल में और मेंटलाइज या आइडियलाइज करने में अंतर होता है क्या अनिल जी, कोई थोड़ा बहुत? सारा ही अंदर है, मतलब ये तो इसलिए जो सरेंडर इतना आसान क्यों नहीं है, मतलब यही तो चीज है। अब वो जो भी है सरेंडर कह आसान भी, है या नहीं है, क्योंकि मतलब जिस जो सरेंडर आत्मा ये कह कहती हो है। कर नहीं पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है भाई, यही तो इतनी सारी चीजें हैं उसमें जो लग रही हैं, उसके अगेंस्ट भी हैं, उन सबको तोड़ के फिर आगे बढ़ने वाली बातें हैं ऐसे में। तो आइडियलिस्टिक मतलब ये है कि आप एक ऊपर से पानी चढ़ा लेते हो, हाँ हाँ, और बिल्कुल। बेसिक जो एक्टिविटी है जो माँ डिमांड कर रही है आपसे, स्ट्रिक्टनेस, परफेक्शन, अनन्यता, किस स्तर की? इंदिरा गांधी का फोन आ गया, व्यक्ति अटेंड नहीं करे क्या? 2 मिनट लेट हो गया, उसके अंदर ही कह दिया भैया लेट कैसे है? कैसे नहीं आएगी आपके ये बात?
कैसे नहीं होगी? तो का माई चाइल्ड डिवाइन कम्स फर्स्ट। आज हम दूर बैठे हैं इसलिए हाँ कहना या जो कहना, क्या उसका कुछ असर पड़ता है इस बात का कि आप क्या कह रहे हो उससे? क्या आपकी चेतना इस बात को स्वीकार करती है? आपके कहे को सीरियसली लिया जाता है? क्या आप अपने दायरे से परे का कोई संकल्प कर सकते हो? तो इसलिए आपकी जो लाइफ है रिमेन्स ऑलवेज द सेम, अनट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड ओनली ए लिटिल एंड मोस्टली इन अपीयरेंस। अपीयरेंस में तो होना ही पड़ेगा, आप समय पे जाके वहां खाना भी खाओगे। यही कारण है कि भले वो सुचारू अब कोशिश तो कर रहे हैं पांडिचेरी को चलाने की, पर हर व्यक्ति अपना पर्सनल जीवन जी रहा है। जब तक आप अपना पर्सनल की साधक समझ सकता है, क्योंकि आपने कितना दिया और कितना आप पर्सनल जी रहे हो। दिया मतलब क्या होता है अनिल जी? कोई सेंस आता है दिया और पर्सनल का? अभी तो सारी चीज पर्सनल ही पर्सनल है, मतलब दिया मतलब हाँ, दिया दिया तो क्या है, कुछ नहीं दिया। वो जो श्री अरविंद का है कि भाई एक 16 आने में से क्या दिया, एक पैसा, वही वाली बात है, क्या दिया है, कुछ नहीं। कि पहले तो दे नहीं, भी क्या सकते हैं, पर जो है उसमें से क्या दिया है? हाँ, कुछ नहीं दिया। मतलब ये एक तरह से अपना पूरा वस्तु स्थिति जो है ना, वो पिक्चर है अपनी, तो समझ ले तो अपने अपनी पूरा कच्चा चिट्ठा खोल लिया, और क्या चाहिए। The spiritual seeker does not turn aside from the pursuit of realization to mere idealizing। आइडियलाइज करके जैसे हम लोग जीते हैं, हम लोग मतलब हम यहाँ बातें हैं खाली माँ श्री अरविंद का कार्य, माँ श्री अरविंद का कार्य, होता क्यों नहीं? देता नहीं मैं अपने आप को उन भागों में, यदि मैं नहीं देता तो आपको क्या कहूं? मेरे पास तो कोई इन लोगों की बात कर रहे हैं ये आइडियलाइज करने की। पंकज जी तो सारे दिन काम भी करते हैं, पंकज जी तो माता जी के और मैं कर लूंगा क्या? अब पंकज जी को पता है कि भी जब इतना सारा सोच के आ ही गए तो अब मेरे ऊपर तो ये स्थितियां हैं, पर आपकी प्रकृति मानती नहीं है इन स्थितियों को बारीकी से। जिस हीट के थ्रू आपको गुजरना चाहिए उसमें आप रिलैक्सेशन करते हो, और वो साइकोलॉजिकली होता है। अब मैं इस चेयर पे बैठा हूं, मैं अपने आप को सही बैठा रहा हूं या एकदम रिलैक्स करके छोड़ रहा हूं, ये तो एक बारीक सी साइकोलॉजिकल स्थिति हो गई। ऐसे बारीकी के अंदर सारे दोष छिपे रहते हैं। छोटी छोटी हर एक्टिविटी के अंदर 100% दे रहे हो या कितना दे रहे हो, कितनी देर अवेक रह सकता है व्यक्ति, यदि पीछे से वो समर्पण वाली बात नहीं रही कि अगर आप और किसी दूसरी चीज को बिलोंग करते हो, और यदि का कोई लेना देना नहीं। यदि का क्या मतलब है? इसलिए कितनी असंभव चीज है जो हमको यहाँ सुविधा मिली है हम नहीं कर पा रहे। आज इस वातावरण में रह के यदि कोई मेरे पास रह रहा और वो समय पे चीज नहीं कर पा रहा, तो और किसी को क्या कह दें अब हम? ये बताओ आप। मानव प्रकृति कैसे बदल जाएगी जब मैं यहाँ हूं और मेरे से अपेक्षा रखी जा रही है, हमारे ग्रुप से जो अपेक्षा रखी जा रही है वो वही चीज कर रहा है, अपने कंफर्ट के अंदर जा रहा है, चीजों में जा रहा है, पकड़ नहीं पा रहे हैं आप उन चीजों को। आपको पता नहीं क्या इन चीजों का? ये हम जितनी बातें कर रहे हैं अभी आइडियलाइज कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ये माता जी को बोलना चाहिए, सब बोलते हैं, हर व्यक्ति बोलता है। जिसका पति मर गया हो वो जाके ज्यादा रोता है माता जी के पास में। हम नहीं कह रहे कि आपकी पत्नी चली जाए या पति चला जाए या बच्चा चला जाए। अभी तो सोच के भी कैसा लगता है। सब बोलते हैं क्योंकि मानव की आवश्यकता है ये। 4 नेसेसिटीज या 4 धाराएं जो प्रकृति ने अपनाई, जिसके अंदर रिलीजन, ओकल्टिज्म, स्पिरिचुअल फिलोसफी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ये 4 धाराएं हैं जिससे आप भीतर जाते हो। हर जना बोलता है इस चीज की आवश्यकता सबको है। जो निराकार की उपासना ये कह के करते हैं कि नहीं अल्लाह तो एक नूर है, फिर भी उससे कनेक्शन साधने की, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता है किसी ऐसी शक्ति को पुकारने की जो आके उसको अपनी मनोविज्ञान में कुछ सहारा दे,
ये हर जने की बेसिक आवश्यकता है, ये हमारी नहीं। इसी को यदि समर्पण कहें तो ये समर्पण जीव मात्र का हो गया, फिर तो सबका है ये। हर जना बोलता है, हर जना पुकारता है, ये हमारे बीइंग की आवश्यकता है। पर एक्चुअल में आपके खाने उठने बैठने सोने के अंदर अभी कोई चैलेंज नहीं है। आप चाह रहे हो वो मेन्यू बन रहा है। आपको आश्रम का भोजन बहुत अच्छा लगता है, पर 15 दिन वहां आश्रम में था साहब, पेठे आ रहे हैं तो पेठे ही पेठे पूरा भंडार भर गया। अब दूसरे पहले तो ये सोच के गए थे माँ का भोजन अमृत है, ये है वो है। अब वो पेठे का भंडार देख के वो जल्दी से गलता भी नहीं, पेठा तो खराब होता नहीं। ओहो, 1.5 महीने ये पेठे खाने हैं, 15 दिन ये बैंगन खाने। मेरे को तो बैंगन अच्छा नहीं लगता, सूट ही नहीं करता। मेरे को तो ये ब्रेड अच्छी नहीं लगती, रोटी कोहराम मच जाता है ब्रेड के नाम से। अभी दूध के साथ आपको बढ़िया लगती है आपके तरीके से। मैं कह रहा हूं हमारे हरिद्वार के अंदर ठाकुर जी का भोजन 2 दिन बढ़िया लगता है, तीसरे दिन अलग से किचन उन्होंने बनाई है और सारों को उसके अंदर, क्योंकि ठाकुर जी की किचन में अभी तक ये स्ट्रिक्ट है कि भोजन वो ही बनेगा जो ठाकुर जी के भोग लगेगा। विदाउट फेल शायद ही ऐसा होता होगा कि सुबह शाम की बची हुई ब्रेड उसको छोंक के उसका कुछ नया उपमा वगैरह कुछ नया बना रहे हो। जो ठाकुर जी का बचा है उसमें कुछ एक्स्ट्रा ये न कर रहे हो, उसमें ये तड़का न लग रहा हो। और वो लोग हैं जो वास्तव में ऐसे हैं जिन्होंने जीवन दिया है, अपने जीवन को मोल्ड किया उनके लिए। तब लाइफ की स्थिति अगर वो ये कह दिया जाए किचन तोड़ रहे हैं कल से बंद है ये, फिर देखो हाहाकार प्राण के। आप क्लोजली उन स्थितियों को देखो, एक एक जीवन को देखो, इम्परफेक्शन किस चीज पे है, क्यों है ये। तो ये मैं और किसी को नहीं कह रहा इसमें बुरा मानने की, ये तो और किसी को मैं कैसे कह सकता हूं। मेरे से बढ़िया सुविधा किसी को किसको मिली होगी। माँ ने जितना इन्वेस्टमेंट मेरे ऊपर किया फिर भी मैं नहीं कर पा रहा, तो और किसी को तो क्या कहूं मैं। इस प्रकृति की ऐसी बदमाशी है, इतनी बदमाशी है, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि क्यों उगड़वाओ इसको। बिल्कुल। सरेंडर मैं तो जानबूझ के इसको उखाड़ना नहीं चाह रहा था। जो है सो, क्योंकि श्री अरविंद तो यूं ही डायरेक्टली कह रहे, पर मैंने ये पाया आप इन शब्दों से भी वो चीज ले नहीं पाओगे। क्या आपको ये बात गंभीर नहीं लगती कि आप पढ़ तो सकते हो पर इसकी बात आपके सामने रिवील नहीं करेगी। आपको वो रिवील गंभीरता माँ के लिटरेचर में पता ही नहीं चलेगी। रिवील तो जब करेंगे जब उसको अपन एक्शन में लाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज तो नहीं। मतलब फिर उसके बिना तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बात तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, मतलब जो चीज है और इस तरह से होती है ये बता रहे हैं, ये चीज ऐसे भाई काम अनिल करते जी, हैं। आप जो है यहाँ जैसे आए, आपने प्रश्न भी किया कि मैं कैसे करूं। आप यहाँ पिछली बार जब लास्ट टाइम आए हम्म थे तब आपने हम्म। प्रश्न किया था ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके उत्तर में ये कह दिया जाए कि अनिल जी आपका बैग यहीं है, जयपुर से और सामान आ जाएगा, पाँव के नीचे की जमीन खिसक जाए 5 मिनट में। बिल्कुल तो सरेंडर इतना, बस कहना और करना, बस यही तो है, कथनी करनी तो में अंतर प्रश्न यही तो हो आपने रहा है। किया, यदि उसका उत्तर दिया जाए हम्म और यदि ये कह दिया जाए आप क्या, नहीं मेरी स्वतंत्र इच्छा है, मैं रहूं हम्म। रहूं नहीं रहूं नहीं रहूं, और आपको ये कह रहे नहीं आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है, कैसी रहे। सबड्यू करने वाली बात आ गई सर, वही है मेन चीज। और इसके अंदर यदि आप विलिंगली नहीं कर रहे, वही कह रहे हैं विलिंगली आनंद लेके करो। अब हम्म। आनंद कहां से लाए, जबरदस्ती आनंद कैसे लाए। माता जी के गोद के अंदर पले बढ़े स्पेशल लोग हैं। पति चला गया, पानी पी पी के गालियां निकालते हैं माता जी को, जबकि माँ के चमत्कार देखे हैं। ये नहीं कि सारे भाग वैसे हैं। बड़ी मुश्किल से इतने साल लगे उसको अपनी सैनिटी में लाने के लिए। एक धोखा, आपको क्लोजली किसी से प्रेम किया है, उस व्यक्ति ने धोखा दे दिया, जिंदगी भर रिमाइंड करता है आपको ये बात। आपके अनुभव आपके साथ डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बैग रखते हो अनुभवों का, वो रहता है ना। तो वो आपका सेल्फ ही तो है, और कौन है। आपके खारे मीठे अनुभव, उस व्यक्ति ने धोखा दिया था,
उस व्यक्ति ने ऐसे कहा था, वो व्यक्ति ऐसा है, ये हमारा ही तो बैग है, बैगेज है ये। आपको क्या पता इस संसार का, हम क्या जानते हैं। माँ आप क्या चाहती हो, ये हर जना प्रार्थना करता है कि अपन उन्हीं लोगों के क्लोजली संपर्क में हैं और कोई दूसरा काम हम कर नहीं रहे। फिर लाइफ अपना कैसे जाल बिछाती है, लाइफ तो यहीं तो पता चलेगा जाल कैसे बिछाती है। तो इसलिए transform mind and life which cannot be done without surrender to the action of the divine force. To seek after the impersonal is the way of those impersonal के पीछे जाते हैं, वो जाते हैं जो withdraw from life, जीवन से withdraw करना, but usually they try by their own effort and not by an opening of themselves to a superior power. ये आसान नहीं है। आप जो माँ को सामने मूर्ति रख के कर रहे हो, ये तो फिर भी इम्पर्सनल नहीं है, पर्सनल है। जो पर्सनल के पास जाता है वो तो try by their own effort and not by an opening of themselves to a superior power or by the way of surrender, for the impersonal is not something that guides or helps, but something to be attained, and it leaves each man to attain it according to the way and capacity of his nature. आपकी जितनी कैपेसिटी है, आपकी जैसी जो प्रकृति मिली है इम्पर्सनल के पास। ऑन दी अदर हैंड, पर इम्पर्सनल नहीं है माता जी, हस्तक्षेप कर लेगी। अगर आप सच्चाई से कहो माँ मेरा जो कुछ है वो आपका है, अच्छा वो सीरियसली ले ले अनिल जी, और आपके पास वालों को अपने पास बुलाना शुरू कर दे, और आपके जो पोजेशंस हैं उनसे आपको मुक्त करना शुरू कर दे। कौन सी चीज ग्रेस है, कौन सी क्या है, आपका जो सेल्फ है उसमें हाहाकार मचा दे। आपकी जो एस्टेब्लिश्ड कंफर्टेबल आदतें सोचने समझने की, उनको सारों को हटा दे। तो आप जो अपने आप को समझते हो या जो आपको जगत लगता है, वो तो विलीन आपके विचार से ही तो है, वो जगत वो तो चला गया। समस्या और किसी चीज की नहीं है, आपके फ्रेमवर्क की, आपने जो सोच समझ के जगत बना रखा है। व्यक्ति जिन कंडीशंस में है उसको लगता है जगत ऐसा ही है, मेरे को लगता है जगत ऐसा ही है और सबको ऐसा ही हो जाना चाहिए। हर व्यक्ति के ये है कि जितना वो देखता है उसको लगता है यही जगत है और सबको इसमें फिट होना चाहिए। बिल्कुल। सब कुछ इसके दायरे में है, वो उसी दायरे में पढ़ लेता है, उसी दायरे में सब कुछ कर लेता है, उस दायरे में साधना भी हो जाती है। इसीलिए अपन ये कहते हैं आपके बावजूद यदि साधना हो रही है तो हो रही है, व्यक्ति के कारण साधना होती है क्या? आप जब दे देते हो माँ यदि अधिकार कर ले, पर अभी तो बोल ही नहीं रहे, हम विद एस्टेरिस्क बोल रहे हैं कि नहीं ये वाली चीज नहीं जानी चाहिए। तो ये ऑन दी अदर हैंड बाई एन ओपनिंग एंड सरेंडर टू दी मदर, यदि आप सरेंडर करते हो माँ के प्रति, यहाँ पर्सनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माँ वहां भौतिक रूप में मौजूद थी, एंड वन कैन रियलाइज, और वो आपको ये कह सकती थी कि जब आप कोई चीज गलत कर रहे हो या आप अनुशासनहीनता कर रहे हो तो माँ आपको स्ट्रिक्ट तरीके से कह सकती थी। अभी आपको कोई कह सकता है क्या? भाई माँ का जो आपको एक सेंस है उससे आप कहलवा रहे हो, वो भी तो आपका ही एक प्रोजेक्शन है। बाकी क्या आपको कोई कह सकता है क्या? क्या आपको अनुशासन में कोई ला सकता है क्या? आपको डांट सकता है क्या आपके बावजूद? आप किसी की डांट सुनने तैयार हो क्या? अभी तो माँ जो आपको डांट रही है वो आप ही एक सब्जेक्टिव माँ का आपने निर्माण कर लिया। उस सब्जेक्टिव मदर से आप कहलवा लेते हो जो कहलवाना है, वो हम सब की एक सब्जेक्टिव माँ है। इसी में होगा शायद ये। मिल जाता है तो देखो ये रहा। एक्टिव लग माँ रहा है का सब। मतलब क्या हुआ?
ये पहले रहा, आया ये था। मैं बता रहा हूं, इसी पुस्तक में है। ये पेज है 330। अब इसकी गंभीरता आप ये देखो, ये क्या कह रहे हैं, श्री अरविंद कह रहे हैं, व्हाट यू राइट is in itself unexceptionable. It is indeed what was offered to the sadhaks at the beginning, but the difficulty is precisely there in the complete sincerity of the nature. Few have been able to rise. A few नहीं, few, इन दोनों में अंतर है, a few में और few में. Few have been able to rise to it, and only a distant approximation, if the phrase can be accepted. यहां जो साधना करने आए उनमें भी शायद ही कोई, फ्यू मतलब ए फ्यू मतलब कुछ, फ्यू मतलब शायद ही, कदाचित ही, राइज टू इट, जो मांग की जा रही है। आप तो यूं कह रहे हो जैसे अपने को समझ में आ गया, पर फ्यू हैव बीन एबल टू राइज इट। मैं ये नहीं, आपको बिल्कुल नहीं कह रहा, ये तो बिल्कुल इंप्रेशन छोड़ दीजिए। ये जितनी बातें हैं, मैं ये अपनी प्रकृति, क्योंकि मैं इससे तकलीफ पा रहा हूं, हम इस बारे में सीरियस हैं। जो हमको सुविधा मिली है यहाँ, हम जब कह के आ ही गए कि हम माँ के हैं, फिर प्रकृति नहीं बदल पा रहे, तो दूसरे को हम कह ही कैसे सकते हैं। मैं यदि इम्परफेक्शन कर रहा हूं, क्लास में आने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सोने में, व्यवहार में इम्परफेक्शन यदि है, और मैं पकड़ नहीं पा रहा पहले तो मैं दूसरे से कैसे आशा। अनिल जी को तो मैं कह दूं, मेरा जोर तो मेरे ऊपर चलना चाहिए ना, ये करके मैं अनिल जी को सुविधा दूंगा चेंज करने में। Few have been able to rise to it, and only a distant approximation, if the phrase has been attained by some. कुछ कुछ जो लोग हैं आश्रम में यहाँ, डिस्टेंट अप्रोक्सीमेशन, डिस्टेंट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, लगभग, और वो भी दूरी का लगभग। आपको मैंने 5 लाख रुपए दिए जी, चुका दिए क्या? हाँ चुकाए। इसने कितने चुकाए? 1500 रुपए दिए। ये क्या चुकाए? अरे तो वो तो दे ही नहीं रहा था, वो तो और ऊपर से मांग रहा था। डिस्टेंट अप्रोक्सीमेशन, इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट, डिस्टेंट अप्रोक्सीमेशन हैज बीन अटेन्ड। और ये बात हम सुन के रोज जाते हैं, पर एक्चुअल में जब वो मेरी प्रकृति बिस्तर के ऊपर कैसे रिएक्ट करती है, उसमें जो ये भाग कैसे धीरे से फुसफुसाते हैं, सही गलत की बताते हैं, अरे भाई बड़ी बदमाशी है ये। क्या आपको ये गुंडागर्दी नजर नहीं आती? अपार्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट सिंसियरिटी, देर इज द डिफिकल्टी दैट द ब्रेन इज क्लाउडेड बाई ईगोइज्म। सिंसियरिटी तो है ही नहीं, उसके अलावा ब्रेन के अंदर ईगोइज्म का बादल छाया हुआ है, मैं तो कुछ हूं। अभी यदि अगर मैं कह दूं नहीं, आप जो कह रहे हो उसमें थोड़ा सा ये भी है, तो ईगोइज्म क्या कहता है, नहीं मैं जो कह रहा हूं वही है। मतलब वही दिलीप कुमार रॉय किसी बात, तो फिर बाद में यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या थी? आप इस गुरु को लेके बैठे रह सकते थे ना। भाई अनिल जी, मैं आपसे कहूं और आपको नहीं, मैं आपकी मानू नहीं, तो फिर बाद में यार क्लास का तो आधार ही खत्म हो गया। फिर तो अपन ये मेहनत करें और आप आओ कि नहीं इसको समझें, फिर तो आप अपने बलबूते पे कर लो भाई। आपकी समझ किसी ने हरी थोड़ी है, आप कर लो इसको जो करना है सो। इस तरीके से देखता नहीं व्यक्ति, तो क्लाउडेड बाय ईगोइज्म एंड डिजायर, एंड इमेजिन्स इट इज डूइंग द वेरी थिंग व्हेन इट इज डूइंग समथिंग एल्स। आप कर रहे कुछ और हो, और आपके माइंड में क्लाउड करके ब्रेन क्या कहता है, तू तो साधना ही कर रहा है, डूइंग द वेरी थिंग। आप ठीक वही कर रहे हो व्हेन इट इज डूइंग समथिंग एल्स, कर रहा कुछ और है। ये तो यहाँ आश्रम की बात है। That is why I spoke of the danger of the theory of all from the mother. सो कुछ आ रहा है वो सब मेरे पास माँ के पास से ही आ रहा है। ये बहुत ही खतरनाक थ्योरी है। अब हमको कौन बताए ये बात कि आपको यही थ्योरी तो अच्छी लग रही है? There are people who have taken it that all that comes from the ego or the vital comes from the mother. ये तो आश्रम की बात है, वहां श्री अरविंद और माँ दोनों हैं। मैं कह रहा हूँ रियलिटी चेक करके देख लो, ये सोना खरा है या नहीं है।
comes from the mother is her inspiration, वो उसकी प्रेरणा से आ रहा है, और what she has given them. There are others, दूसरे ऐसे हैं या आश्रम में, who have taken it as an excuse for going on in the old rut indefinitely. ये आइडियलिस्टिक बात जो अभी हम कर रहे थे वो इस आइडियलिज्म की है। आप तो दूसरी सोच रहे हो, क्योंकि अब आपको मैं अगर बता भी दूंगा तो भी आपके लिए वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। मैं जानता हूं मेरी प्रकृति को कैसी बदमाश है। तब की बदमाशी है जब ये और कोई दूसरा काम, अब ये कहना भी कितनी बदमाशी लगती है, अरे तूने किया क्या है बचपन से, बदमाश कहीं का। अब तो कुछ कुछ आभास आता है कि जो लाइफ और जिसकी बात श्री अरविंद कर रहे हैं, आप नैष्टिक ब्रह्मचारी हो सकते हो बचपन से, और फिर भी प्रकृति अपने जो चाहे सो करती है। दूसरे ऐसे हैं या आश्रम में, उन्होंने पुरानी जो ढर्रा है, रट मतलब पुराना ढर्रा, उसी में चलते रहने का एक्सक्यूज, टेकन इट एज एन एक्सक्यूज, सेइंग दैट व्हेन द मदर वांट्स, जब माँ को अच्छा लगेगा वो अपने आप ही चेंज कर देंगी, शी विल चेंज थिंग्स। इसलिए चीजों को पकड़ने का, मैंने कहा मैं उघाड़ना नहीं चाहता, गलत तरीका और सही तरीका। आप सही चेतना में होगे, सब शब्द सारे मीनिंगफुल हो जाएंगे, नहीं आप गलत ही पकड़ोगे। देयर वर इवन सम, कुछ तो ऐसे हैं, हु ऑन दिस बेसिस, इसी बेसिस पे उन्होंने एक सब्जेक्टिव मदर का निर्माण कर लिया इन देमसेल्व्स। वो माता जी ऐसी है हु डिक्टेट्स, वो उनको कहती है ये करो वो करो, सब्जेक्टिव माता जी, फ्लैटरिंग टू देयर ईगो एंड डिजायर, नहीं तू ठीक ही है, अब जिन स्थितियों में तू है और इनको क्या पता, तेरे को तो। भैया सब्जेक्टिव माता जी का मतलब क्या हुआ? आप कौन सी माता जी से मिलते हो जब आप प्रार्थना करते हो? जो सामने हमारे फोटो में रहती। और उससे जो उत्तर या प्रेरणा या जो भी आपको महसूस होता है, उसकी वैलिडिटी क्या है? वो आपको डांट भी देती है, वो आपकी गलतियां भी बता देती हैं। ये मनोविज्ञान किसी भी चीज की रचना कर लेता, वहां भौतिक रूप से मौजूद माँ है, तब एक सब्जेक्टिव माँ का निर्माण कर लिया। अभी तो आपके डीप डाउन आपको पता है कि आप फोटो से बात कर रहे हो, और मजबूरन आपको सब्जेक्टिव माँ का निर्माण करना पड़ेगा। Who dictates flattering to their ego and desire, they pitted against the contrary dictates of the mother here। और उस माँ के, यहाँ जो माँ है भौतिक रूप से, वो जो आपको निर्देश दे रही है, उस सब्जेक्टिव माँ की माननी शुरू कर दी, यहाँ जो भौतिक माँ कह रही है उसके डिक्टेट से कॉन्ट्रेरी करना शुरू कर दिया। एंड केम टू थिंक, और ये सोचना शुरू कर दिया, यहाँ साधक है, दैट दिस एक्सटर्नल मदर वॉज आफ्टर ऑल नॉट सो मच द रियल थिंग। यहाँ जो भौतिक रूप से माँ है वो इतनी रियल नहीं है जितनी कि आपकी जो सब्जेक्टिव माँ है वो है, एज द इनर वन। और उसको आप कह रहे हो आंतरिक माँ, क्योंकि श्री अरविंद भी कह रहे हैं इस माँ से भी आप आंतरिक रूप से मिलो, भौतिक रूप से नहीं। और दैट शी वॉज पुटिंग देम थ्रू एन ऑर्डियल। और ये अच्छा, कुछ लोग ये हैं, उन्होंने ये कह दिया कि ये आपको अग्नि परीक्षा से गुजार रही है। रात को सपने में श्री अरविंद आए थे, माता जी आई थी, उन्होंने कहा सुबह मैं जो बोलूंगी उसको मानना मत, by contradicting the inner dictates and seeing what they would do। और तब पता चलेगा तू अगर सच्चा होगा तो मैं जो कहूंगी भौतिक रूप से उसको मानेगा नहीं। तो आप इस परीक्षा में अनिल जी पास होना चाहते हो या फेल? आप आंतरिक माता जी के प्रति निष्ठावान रहना चाहते हो ना, क्योंकि आपको तो भीतर से प्रेरणा आ गई। अब भौतिक रूप से माता जी बैठी है, उसकी नहीं मान रहे। बिल्कुल। ये अगर रिटर्न में ये पत्र नहीं हो तो हमको, मैं कह रहा हूं ये पत्र हैं तो कौन बताए। अब देख लो आप कितना संपर्क में हो माँ श्री अरविंद की राइटिंग्स के। द ट्रूथ रिमेन्स द ट्रूथ, जो सच है वो तो सच है साहब। आज पत देख लो चाहे कल देख लो, बट दिस पावर ऑफ ट्विस्टिंग बाय द माइंड, माइंड किस तरीके से चीजों को ट्विस्ट करता है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ द नेचर हैज टू बी केप्ट इन साइट ऑल्सो। सच तो सच रहेगा, पर माइंड की ट्विस्ट करने की, ये मैं कह दूं नहीं, पंकज जी ने तो बहुत अभ्यास किया, उनका माइंड ट्विस्ट नहीं करता, यही झांसा है। खतरे हैं, तो पंकज जी डेंजर। जितना आगे चले यात्रा में, पंकज जी को ये सेंस आना चाहिए कि उतना ही तेरे को सजग होने की आवश्यकता है
केयर फ्री होने की आवश्यकता नहीं है। रामकृष्ण जी को ये लगा मतलब कामिनी कांचन इससे थोड़ा सा ऊपर उठा तो काम भयंकर रूप से उठा, माँ के बिल्कुल सामने हाथ जोड़ लिया। हम किस खेत की मूली हैं, क्या बोल रहे हैं हम? हमको सेंस एक्चुअल में है नहीं। बिल्कुल। इस लेटर की गंभीरता जो पहले वाला हमने पढ़ा, ये यदि माँ सामने कह रही है तब नहीं मान रहा, और क्या मतलब हमारी प्रकृति झांसा दे रही है हमको। इसीलिए आप चाहे आश्रम में रह लो, बरसों रह लो, तो अपना जाल बुन के रहता है। समझदारी इसके अंदर है, ये न मानो कि आप खतरे में नहीं हो, हम्म, जान खा ये के। मानो कि झांसे में तो आप हो ही पक्के ही। आपको नहीं कह रहा मैं, किसी को भी नहीं कह रहा, ये मैं क्लियर कर दूं। ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये तो अपने साथ अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। अनिल जी, इसमें और क्या बात रह गई अब ये बताइए। यानी कोई बात नहीं है। और इतने जाल घात हैं, मतलब इसको बड़ा सस्ते में, मतलब सरेंडर को अपना इतना इजी, बात तो इजी है होने के बाद में, लेकिन भाई वो पहली कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती ना। सरेंडर होने के बाद में तो चीजें स्मूथ हो सकती है, हो जाएंगी, लेकिन वही तो नहीं हो रहा ना। वही इश्यू है। अब ये जो तो है सो आपके सामने है, इन शब्दों का मूल्य जो है सो बिल्कुल स्पष्ट है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ना ना ना, वो तो पूरा कच्चा चिट्ठा है, सारा आ गया इसमें, और क्या। और कुछ। और माइंड आइडियलाइज करता रहता अपने आप को, देखो कैसा आइडियलिस्टिक तरीके से प्रस्तुत करता है ना हर व्यक्ति, कितना सुंदर रंगों में प्रस्तुत करता है। कौन स्वीकार करता है? कोई व्याख्यान दे रहे हैं, यो धड़ल्ले से उत्तर दे रहे हैं भीड़ को, कोई पूछ रहा है मेरे को नहीं पता, भाई साफ साफ कह दो नहीं, आई डोंट नो। जैसे ही आप उस गद्दी के ऊपर बैठते हो आपको लगता है आपको तो सारे उत्तर पता है। अरे यार क्या बातें हैं। जब आपने कोई जीवन में कुछ किया हो तब आप पकड़ पाओगे इसको। ठीक है, इसको यहाँ विराम देते हैं। देविका जी, आप देख रहे हो गंभीरता इस चीज की? हाँ जी। ट्विस्टिंग की जो कैपेसिटी है माइंड की, वो तो अनंत है। अब अपन सिंथेसिस पे आते हैं, इसका प्योरिफिकेशन कैसे करें, इस पे आते हैं।